Namaskar. Good evening to all those who are in the east of this globe, and good morning to those who are on the west. I am Praveen Vyapari. On my personal behalf and on behalf of Vidhi Manch, Law Forum Hyderabad, and Efficacy Law Hub, I welcome you all to this virtual event to celebrate the 72nd Constitution Day, which occurs every year on 26th of November, since the day the Constitution was finally signed on 26th of November 1949. Now, as per our procedures, I would seek the leave of the guest of the honor to permit me to read the invocation. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. May I now request Achyutanand to deliver the welcome address. Achyut, you can unmute and go ahead. Thank you. Unmute. Achyut, unmute. Unmute. Your mic is mute. No, it's still mute, sir. Yes, it is unmute now. Please go ahead. Good evening, ladies and gentlemen. On my behalf and on behalf of Vidhi Manch Hyderabad, I extend a warm welcome and greetings on the eve of the 72 Constitution Day. I have a great pleasure, especially today, to have the erudite presence with us of a most respected political leader, a parliamentarian who was the custodian of the House of People, the Lok Sabha, a social activist, a thinker, and one who belonged to the fraternity of lawyers. And above all, a humble person, Srimati Sumitra Tai Mahajan. She has been benevolent enough to accept our request to deliver the talk on the eve of this 72 Constitution Day in this difficult time of a pandemic. I take pleasure in welcoming the guest. To introduce the guest of this evening function is thoroughly a formality, yet I propose to give a very brief introduction. Srimati Sumitra Tai Mahajan, born in Chiploon, Maharashtra, made Indore her home and completed her education at Indore, obtaining her post-graduation and degree in law from Indore University. She idolized and was inspired by the great Ahilyabai Holkar. She has worked relentlessly in devoting her time in the cause of public service. Her devotion and compassion to work for a cause of public and an ideological honesty earned her the opportunity to represent the constituency of at all levels of public life and being the deputy mayor of Indore Municipal Corporation, rising to the stature of Speaker of the Lok Sabha. She was first elected to the Lok Sabha in the year 1989, and she served in the Union Ministry of State, holding various portfolio of human resource development during the year 1999-2002, communication and information technology during the year 2002 and 3, and petroleum and natural gas during the year 2003 and 4. In the 16th Lok Sabha, she was elected to be the most respectable office of the Speaker of Lok Sabha for the tenure 2014 to 2019.
She was the longest serving woman member of the parliament. She has also authored a book on the life of Ahilyabai Holkar titled Mahatusri in 2017. This talk on which the talk is being delivered is also very important and less spoken. Her experience and study give us all insight in the subject. Madam, I welcome you on behalf of Vidhimanch on the eve of 72 Constitution Day. I welcome all the attendees who have graced this virtual celebration of this National Day. I welcome one and all. Thank you. Thank you, Achyutanand. So we now go to the main talk of the day, and may I now call upon the speaker of this event, Honorable Srimati Sumitra Tai Mahajanji, to deliver her oration on the eve of 72nd Constitution Day on the topic Constitutional Values and Legislative Processes. Madam, you may take over the mic. You can unmute and start. Thank you. विधि मंच के सभी सदस्य पदाधिकारी सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आज कॉन्स्टिट्यूशन का 72nd मतलब करीब करीब अब 72 वर्षों से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को हो गए। उसको हमने अडॉप्ट किया उसको 1950 में पार्लियामेंट में। और हम सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान, मगर भारत का संविधान बनने के पहले का भी इतिहास अगर ध्यान में रखें कि भारत का अपना एक इतिहास है। राज्य कैसे चलाना, राज्य कैसा होना चाहिए, लोगों के कर्तव्य क्या है, ये एक प्रकार से हमारे इतिहास में कहो, हमारे धर्म में कहो, हमारे कई ऐसी किताबों में कहो और मिलेगा भी। और कई बार ये भी होगा कि वास्तविक रूप से किस प्रकार से हमारे यहाँ के राज्य चलते थे, जनपद चलते थे, ये भी हमने देखा हुआ है। मुझे मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आ रही है ना? ओके। तो हमने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ की जनपद चलती थी और राज्य प्रजातांत्रिक राज्य भी थे, राजेशाही भी थी, मैंने एक राजा भी हुआ करता था, ऐसे भी राज्य थे। सब प्रकार से भारत में ऐसे अनेकानेक राज्य दिखे और उनके अपने अपने नियम कानून भी हुआ करते थे और उसके अनुसार वो चलते भी थे, बहुत ताकत से चलते थे। मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ कि हम उसको कहानी बोलते हैं कि विश्वामित्र वशिष्ठ की और कामधेनु की कहानी कहते हैं कि ये कामधेनु क्या था। तो मैं तो मानती हूँ ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रजातंत्र है कामधेनु, क्योंकि आज हम किसी को कहने जाए कि गाय ने, कामधेनु ने पूंछ पटक दी जमीन पर और हजारों सैनिक उसमें से निकल पड़े, ऐसा नहीं है। एक पावरफुल प्रजातंत्र जिसको हम कहते हैं कि हर सैनिक है जो अपने राज्य के लिए लड़ने को भी तैयार है और जब लड़ने की परिस्थिति नहीं है तो अपना अपना काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मगर संकट आने पर सब एक होकर के लड़ते हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि हमारे भारत की भी ये सभी जो विचार प्रणाली है एक पुख्ता विचार प्रणाली, और उसी में से कई बार ये भी होता था। इसलिए जब कहा जाता था कि भारत अगर स्वतंत्र हो जाए तो कैसे चल पाएगा, ऐसे कोई बाहरी लोग उसके बारे में जब बोलते थे तो हमारे लोकमान्य तिलक जैसे नेता बोलते थे, पहले तो आप चले जाओ फिर हम हमारा देख लेंगे, पहले स्वराज्य और फिर उसको सुराज्य हम करेंगे, हम अपना तय करेंगे। ये एक कॉन्फिडेंस, ये एक विश्वास हमारे नेताओं में उस समय भी था, आज भी है। और फिर आज हमारा भारत स्वतंत्रता के बाद जो संविधान बना उसमें सब प्रकार के लोग थे, सब प्रदेशों के लोग थे, ये भी मैं कहूंगी सब प्रदेशों का नेतृत्व था। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, सब भाषाओं का भी, भाषा जानने वाले लोगों का भी नेतृत्व उसमें था। सामाजिक लोग भी थे, राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचने वाले भी थे। अब मैं उसकी पूरी सूची बताऊं लंबा हो जाएगा, मगर हम जानते हैं। और मैंने इसको एक, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने एक प्रयास भी किया कि आज के हमारे बच्चों को भी ये जानकारी ठीक ढंग से मिले। तो ओरिजिनल संविधान के किताब की एक बड़ी कॉपी हमने निकाली, उसकी बहुत सारी कॉपियां निकाली
और मैं वो प्रेजेंट करती थी, कोई ऐसे सांसद, युवा सांसद, उनसे बातचीत करते प्रेजेंट करती थी, रख भी दी थी पार्लियामेंट में, ताकि वो इसमें देखे तो सही कि एक्चुअली क्या है उसमें, किस तरीके से वो पूरा डिबेट भी हुआ था, या उसमें किस किस की सिग्नेचर है। उसमें मुझे अच्छा लगा कि हमारा एक हरियाणा का सांसद था, उसने उसको, जब मैं किसी कारण से इसमें वो फर्स्ट आया, तो मैं युवा सांसदों की प्रतियोगिता भी लेती थी, मजे में लेती थी अपने हाँ, अपने हेलो हेलो, मगर उसमें Please उसमें mute, वो sir. फर्स्ट आया, तो मैंने उसको वो आवाज आवाज सुनाई पड़ रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है। नहीं हेलो, सर, हमको श्रीवास्तव सुनाई जी, पड़ रहा है। श्रीवास्तव जी, हाँ बस म्यूट कीजिए, राइट मैडम, होने चलने दीजिए, हेलो, या मैडम चलने दीजिए, हाँ, ओके, मुझे समझ में नहीं आया, आप कुछ बोल नहीं रहे नहीं, थे। सॉरी सॉरी, हाँ तो जब मैंने उसको वो किताब भेंट करी सबके बीच में, तो उसने वो किताब खोली और मुझे दिखाया बहुत आनंद से कि देखो सुमित्रा जी, मैडम इसमें मेरे दादाजी के सिग्नेचर है। वो उसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, सिग्नेचर करने वालों में से एक थे। बहुत आनंदित हो गया। तो ऐसे कई विद्वान भी उसमें थे और सबने मिल करके बहुत दिनों तक उस पर चर्चा हुई। और एक बात जरूर है कि अत्यंत, जिसको हम कहते हैं अच्छे तरीके से हर पहलू पे चर्चा हो करके हमारी ये बनी हुई है, संविधान हमारा बना है। मगर मुझे जो सबसे ठीक बात लगती है कि आप अभी आपने बातों बातों में उल्लेख भी किया है कि जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बोलते हैं, जो हमारे संविधान में दोनों तीनों बातें कही गई है। पहले तो है कि हाँ, ये भारत का जो संविधान है, इसकी मूल बात क्या रहेगी, तो आपने अभी जैसे कहा है, प्रियम्बल में ही ये बातें कही गई है कि क्या है वैल्यूज उसके। ये रिपब्लिक रहेगा, ये सॉवरनिटी इसकी हम रखेंगे, सॉवरिन कंट्री, वी आर द सॉवरिन कंट्री, ये कहा गया। ये सब बातें आपने भी कही। मगर मुझे एक बात जो महत्वपूर्ण लगती है हमारे संविधान में, ये सब कहने वाला कौन है, ये संविधान की बात। तो उसमें प्रियम्बल में कहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दैट इज द, मुझे लगता है, माफ करना मेरे कोई किसी को ठीक नहीं लगे तो, लेकिन वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा भारत इस तरीके से चलेगा, हमारे भारत के ये वैल्यूज है, हमारे भारत में प्रजातंत्र भी रहेगा, हमारे भारत में हम समाजवाद, सोशलिज्म भी रहेगा, हम सभी पंथों को समान मानेंगे। ये सब बातें वो बाद में जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्षता की बात जो हम सेकुलरिज्म के कहते हैं। मगर ये हम भारत के लोग और हम इसको मानेंगे, ये, और ये महत्वपूर्ण बात कि हम भारत के लोग, ये जागृति अभी लाना पड़ेगी। मैं आगे उसी के बारे में बोलूंगी। लेकिन आज जब हम देखते कि ये जो हमारे भारत का संविधान है, इन्होंने हमें भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बना, उसकी एक प्रोसीजर, और ये एक बहुत ही अच्छी, जिसको हम कहते हैं, बहुत अभ्यास करके, अनेक देशों के संविधान का अभ्यास करके बनी है, ये भी सबको मालूम। मगर जो एक भारत की आत्मा है कहो, या भारतीय संस्कृति का हम कहते हैं, मेन बात है भारतीय संस्कृति की, कि हम बहुत संयम से हम लोग रहते हैं। हम जिसको कहेंगे कि सभी का समतोल रख के चलते हैं भारत के लोग। हमारी संस्कृति में कहा है, कोई किसी पर हावी नहीं होना चाहिए, समतोल बना रखना चाहिए। और इसलिए संविधान में भी हम देखेंगे कि संविधान में भी भारत की न्यायालय जो है, तो न्यायालय है, कार्य का ये बोलते हैं एग्जीक्यूटिव जिसको हम बोलते हैं, और जो जनप्रतिनिधि है पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, न्यायालय है, और चौथा स्तंभ जिसको हम प्रेस बोलते हैं, इनका आपस में समतोल होना चाहिए। कोई एक दूसरे पे हावी भी नहीं हो, लेकिन एक दूसरे को संभालने की बात, ऐसा नहीं है तोड़ने की बात नहीं है, या किसी ने किसी के ऊपर हावी होके कुछ करना नहीं है।
मगर हर कोई एक दूसरे को वॉच करेगा, अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो एक दूसरे को समझाएगा। मैं तो इसको इस रूप में लेती हूँ, समझाएगा। हर एक के अपने अधिकार है, पार्लियामेंट के अपने अधिकार है कि वो कानून बनाए, मगर कानून बनाने के लिए एक प्रोसीजर भी दी गई है। उस प्रोसीजर को बरोबर फॉलो किया जाता है कि इस प्रोसीजर से और जो हमारे इसमें कहा गया है संविधान में, उन मूल बातों का कहीं हनन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए स्वतंत्रता भी कायम रहे, ये वैल्यूज हमारे कायम रहे, हमारी जो सॉवरेनिटी है वो सॉवरेन कंट्री बनी रहे हमारी, और ये सभी बातें कायम रहते हुए मगर राज्य सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमें कानून, और वो कानून में भी हम देखेंगे हर एक को अपना अधिकार दिया। शेड्यूल 7 शेड्यूल जो है वो कहता है राज्यों ने कौन से कानून बनाना है, उनका अधिकार क्या है, केंद्र का अधिकार क्या है, कैसा है, ये सब प्रकार बताए गए हैं। और उसको देखना, ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट विल सी टू इट कि हाँ ठीक कर रहे हो, इतनी ही बात है। वो इंटरफियर नहीं कर सकते, मगर हाँ उसके अनुसार सब चल रहा है कि नहीं, जैसा मैंने कहा एक दूसरे का समतोल देखना। अब कई बार ये बात होती कि ये प्रोसीजर क्या, क्योंकि मैं स्पीकर रही, आई नो इट, कि कई बार लगता है अरे 3 बार पढ़ना होता है कोई भी कानून। अब 3 बार पढ़ना हम भी समझते, ऐसा संभव नहीं है कि पढ़ते बैठो, इतना तो समय का अभाव भी है, लेकिन पालन होता है उसका, एक प्रोसीजर है उसकी, कि कोई भी कानून बनाने से पहले, अब तो हम सब इंटरनेट पे आ गए हैं, तो वो लोगों के लिए खुला रखा जाता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, आपके कुछ सुझाव दे सकते हो। ये भी एक बात, ऐसा नहीं कि एक्टिव या कोई मिनिस्ट्री अपने तय बनाए, उनका डिपार्टमेंट उस पर सोचता है, कई सारे लोगों के साथ चर्चा होती है, और चर्चा होकर के वो कानून बनता है। बनने के बाद उसको पार्लियामेंट में, अब जो कहते हैं ना, किया जाता है, रखा जाता है कल, और उसकी भी मर्यादा है, 7 दिन पहले, 15 दिन पहले ऐसा वो रखा जाता है कि हम ये ला रहे हैं। ऐसे एक मतलब ये इंफॉर्मेशन हो गई, आप उसको पढ़ो, ये हो गया। जिस दिन उसको हम लाएंगे चर्चा के लिए, उस दिन भी एक बात रहती है कि मिनिस्टर अब पूरा पढ़े नहीं, जिसका बोलते 3 बार पढ़ना या कुछ, मगर मिनिस्टर जो होता है वो उसकी एक एक चीज, और इसलिए मिनिस्टर का उस दिन का भाषण पूरे तौर पे ऐसा रहता है कि हम ये कानून क्यों ला रहे हैं, इसमें कौन सी बेसिक बातें हैं, इसमें क्या क्या बताया गया है, कौन कौन के क्लॉजेस है, ये सब वो मंत्री जो है वो पूरी तौर से जानकारी सबको देता है। ये प्रोसीजर है, और फिर पार्लियामेंट में उसकी चर्चा होती है। यानी ऐसा नहीं है कि एकदम कोई कानून पास होता चला गया, ऐसा कभी होता नहीं है। तो उसमें चर्चा होती है, चर्चा के लिए समय दिया जाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, और वो समय भी केवल स्पीकर नहीं दे सकते, आप सबको मालूम है, मगर मैं केवल इसलिए एक दोबारा रिपीट कर रही हूँ बातें, कि केवल स्पीकर नहीं समय तय कर सकती, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी इज देयर। यानी लोगों को लगता है कि कर दिया इन्होंने, कर दिया पास, नो, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसमें सभी प्रमुख दल जो है उनके प्रतिनिधि रहते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगी, प्रमुख दल के प्रतिनिधि तो रहते ही है, मगर इसके अलावा आजकल इतनी छोटी छोटी पार्टियां हो गई है, तो उनका क्या होगा। तो हमने उसमें भी एक नियम किया, अलट पलट के, कि अभी ऐसा है कि 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए ये 3 पार्टियों के प्रतिनिधि आएंगे, फिर ये ले आएंगे, इस तरीके से अदल बदल के कुछ नियम बना के उनको भी बिजनेस एडवाइजरी में हम प्रतिनिधित्व देने की अब कोशिश करते हैं, ये होता है। और उसमें ये तय होता है कि आने वाले दिनों में ये कानून पर चर्चा होना, ये बिल पे चर्चा, उस तो तब तक बिल रहता है, तो इसको समय कितना देंगे ये तय होता है। और समय के उस समय में हर पार्टी का भी समय तय होता है, जिसकी जितनी संख्या है पार्टी की, उसके आधार पर उस पार्टी का समय तय होता है कांटेल पे। और क्योंकि ऐसा है, उतने समय में वो काम पूरा भी करना है, और आप जानते हो 540 लोग वहां पर रहते हैं, जनप्रतिनिधि। अच्छा, वहां पास होने के बाद उसको राज्यसभा में भी भेजना होता है, दोनों सदनों ने पास करना होता है। तो इसलिए
ये समय तो करना पड़ेगा हर एक पार्टी का, और वो तय करके फिर चर्चा होती है हर पार्टी के। अब आपको अगर 40 मिनट मिले हैं तो आप 40 मिनट में 10-10 मिनट 4 लोग बोल सकते हो, और या तो 40 मिनट एक ही व्यक्ति बोले, ये पार्टी से आखिर में कांट हेल्प इट, ये पार्टी तय करती है। फिर ऐसा आता है कभी कभी कि ये जो डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन के बाद जब एक्चुअल एक एक क्लॉज वाइज जब बिल पारित होने लगता है, उस समय भी यू कैन आस्क ए क्वेश्चन। यानी मैंने जो देखा है, मैं पार्लियामेंट की स्पीकर रहने के पहले भी मैंने देखा है कि कभी हशश में कानून बहुत कम, ऐसा कि बहुत ही पार्लियामेंट डिस्टर्ब है या कुछ है और बहुत ही कुछ आवश्यक है, बहुत कम, ऐसा होता नहीं है फिर भी। और ऐसे में ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, और ये प्रक्रिया करके कोई भी कानून जो है पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, तो ये जो प्रोसीजर है इसकी, ये बराबर फॉलो होती है। एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि क्योंकि मैं डिबेट पर बाद में आती हूँ, कई सारे प्रश्न आपके मन में हैं, लेकिन उसमें एक बात और भी है कि 1995 में या समथिंग होगा, उसके पहले पहले या कहीं स्टैंडिंग कमेटियां बनी, क्योंकि जब ये बात ध्यान में आई कि समय कम पड़ता है, सबको अपने विचार देने का समय नहीं मिलता है, तो क्या करे, तो कुछ बिल स्टैंडिंग कमेटी में, और वो भी पार्लियामेंट तय करेगा कि ये स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए, मनी बिल छोड़ के फिर भी। तो स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं बिल, और स्टैंडिंग कमेटी में सभी इसके प्रतिनिधि रहते हैं, और बहुत विस्तृत चर्चा उसमें होती है। यहाँ तक होती है, मैं आपको एक मेरा अनुभव बताऊंगी। पहले आपको मालूम होगा पीएम सईद, ये तुम्हारे वहाँ के कौन सा प्रदेश है अपना, वहाँ के प्रतिनिधि थे, लक्षद्वीप के, लक्षद्वीप के, और सालों साल वही रहे। अब लक्षद्वीप, हमें यहाँ बैठ के कुछ कल्पना नहीं आती व्हाट इज लक्षद्वीप, सच बताती। पीएम सईद के जाने के बाद एक्चुअल वो बिल सामने आया, और मैं उस समय सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, और वो जो बिल सामने आया उसमें ये बात थी कि वो था तो वैसे ट्राइबल, क्योंकि लक्षद्वीप तो पूरा का पूरा ट्राइबल ही माना जाता है, तो ट्राइबल के इसमें कौन चुनाव लड़ सकता है वहां से, इस पर कुछ नियम थे। और उसमें यह था कि वहां जन्म लिया हुआ व्यक्ति, वहां प्राइमरी तक जिसका एजुकेशन हुआ है ऐसा व्यक्ति, वहां जिसका अपना स्वयं का मकान है, ठिकाना है, ऐसा व्यक्ति, ऐसी कुछ कुछ बातें उसमें कि वही व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ सकता है। उसमें थोड़ा चेंज करना था, उसमें वो वहां जन्म लिया ये बात बदलना थी। मेरे मन में भी ऐसा आया वो देखते, देखो मैं भी उस समय एक पॉलिटिकल जीवी थी, मैंने कहा अरे ये क्यों बदलना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएम सईद का बेटा आगे का चुनाव लड़ना चाहता है, होता है ऐसा, और फिर वो चुनाव लड़ना चाहेगा तो उसका जन्म तो वहां नहीं हुआ, वो तो करीब करीब उनकी जिंदगी दिल्ली में ही गुजरी, खुद पीएम सईद की भी, और हो सकता है उसका जन्म यहाँ, कई सारी चीजें मन में आ गई, और भी कई बातें, ये क्या हो सकता है, वहां के लोगों का क्या कहना है। फिर हम सब कमेटी ने तय किया कि नहीं, हम लक्षद्वीप जाएंगे, और मुझे लगता है फॉर द फर्स्ट टाइम कोई ऐसी कमेटी लक्षद्वीप गई होगी, और लक्षद्वीप को जब हमने देखा, देखो वास्तविकता देखने के बाद कई सारी चीजें ध्यान में आती है। लक्षद्वीप यानी छोटे छोटे समूह है, यानी एक द्वीप की तो लंबाई चौड़ाई अगर आप कहे तो मुझे लगता है 25 मीटर भी कहीं किसी की होगी नहीं होगी, बहुत थोड़ी उपस्थिति एक द्वीप पे रहती है, फिर थोड़ी दूसरे द्वीप पे लेते हैं, ऐसे द्वीप समूह है। और भी कई सारी मजेदार बातें वहां, और जाने वाली एक ही फ्लाइट, और वो भी फ्लाइट छोटी फ्लाइट जाती है, सालों साल वही फ्लाइट जा रही। और सबसे मजेदार बात उस समय सामने आई थी, थोड़ी सी बता रही हूँ कि वो जो पायलट था उसने कहा, आपको मालूम है मैडम कि मैं गत 20-25 साल से मैं ही ले जा रहा हूँ ये फ्लाइट, कोई नहीं यहाँ आने को तैयार नहीं है, तो दूर है वैसे वो। तो ठीक है, हम तो वहां सब पहुंचे, मेरे साथ बाकी भी मेरे साथी थे। एक ऐसे ही
वहाँ सर्किट हाउस जैसे जहाँ हम उतरे कुछ भी नहीं, एक स्कूल टाइप कुछ ये था और वही हमारी व्यवस्था। क्योंकि पूरा द्वीप जो हमने वहां का इलाका देखा वो देख के मैं सन्न रह गई तक की। छोटे छोटे झोपड़े, कोई ऐसे लोग बिल्कुल वहां रह रहे थे। मगर फिर दूसरे द्वीप से दूसरे दिन और भी लोग हमें मिलने आ गए। जब मिलने आ गए हमने बता दिया कि हम क्यों आए हैं मिलने, ऐसा ऐसा नया परिवर्तन इसमें हो रहा है, तो आपके विचार हमें जानना पड़ेंगे क्योंकि आप इस द्वीप के रहवासी हो। उसमें एक अच्छे समझदार समझदार भी लोग थे जो पढ़े लिखे भी थोड़े थे। और जब चर्चा चर्चा में उन्होंने कहा फिर कि हाँ मैम बात तो सही है कि हो सकता है ये किसी के लिए बन रहा हो, लेकिन अब जो परिस्थिति हमारी बनी है उसमें वास्तव में ये आपको मिलेगा, क्योंकि अब हमारे लिए हम भी थोड़े समझदार हो गए हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि डिलीवरी होने से पहले मालूम हो, अगर डॉक्टर ने कहा कि ये थोड़ी सी तकलीफ कुछ है, तो हम जिनको पोसाता है पुराता है, ऐसे जो नाविक है, जो मछुआरे भी है, वो भी यहाँ से, क्योंकि हमारा व्यवसाय तो यहाँ वहाँ चेन्नई या ऐसी जगह पे चलता है, पास में जितने भी ऐसे ये ठिकाने हैं, तो हम पहले से ही हमारी इनको वहां ले जाके रखते हैं। 10 दिन पहले, 14 दिन पहले, वॉट एवर जैसी सुविधा सुविधा हो। और कई सारी अब हमारे यहाँ भी जो डिलीवरी, अगर यहाँ क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं है तो वहां पर होती है। यानी अब हमारे बच्चों का जन्म जरूरी नहीं कि लक्षद्वीप पे ही हो, हमें वहां जाना पड़ता है। कई मुश्किल बता दी गई तो वहां जाना पड़ता है। हम दिखाने के लिए भी जाते हैं क्योंकि एक 24 घंटे लगते हैं वहां नाव से पहुंचने में, तो हम उतने में ले जाते हैं, दिखा के आ जाते हैं। तो यानी वहां देखने के बाद मुझे कहा हाँ बात तो सही है इनकी। तो ये क्लॉज जो है, ये क्लॉज अगर हट भी जाएगा तो वहां के लोगों को उसमें आपत्ति भी नहीं रहेगी। और इतने साल में जो अंतर आया है, क्योंकि पहले तो लक्षद्वीप कहाँ है खाली सुना हमने, किसी ने देखा ही नहीं होगा, मगर अब हमने देखा। अब वहां के लोगों ने भी हिंदुस्तान देखा, उनका हिंदुस्तान में आना जाना हो गया, भले ही वहां लगे हुए उसके तट के इसमें ही वो के आते जाते हैं, लेकिन ये हो गया, संपर्क हो गया है। और इसलिए फिर मेरा कहना है कि पूरे समिति ने जब वो पूरा नजारा देखा, उनकी तो बातें और भी थी कि अब यहाँ पर है ही नहीं, एजुकेशन के साधन नहीं है, बहुत कम है, या एक द्वीप पर होंगे तो रोज उठ के हमारे बच्चे वहां जा भी नहीं सकते। तो कल ऐसा भी हो सकता है कि हमें शिक्षा के लिए हमारे बच्चों को वहां रखना पड़े और कहीं जगह चेन्नई में रखना या और कहीं रखना पड़े, तो ये भी कल हो सकता है। तो ये जो परिस्थिति हमने जब कमिटी ने स्वयं देखी और फिर सभी पार्टियों के लोगों ने इस बात को माना, तो हमने फिर वो जो परिवर्तन था उस परिवर्तन को एक्सेप्ट किया। मेरा कहना ये है कि ऐसा नहीं है। और फिर कमिटी के लोगों ने बात भी अपनी पार्लियामेंट में जब डिस्कशन पे आई तो अपने इस पे भी लिखते हैं हम, रिपोर्ट जाती है, तो हमने ये किया। यानी ऐसा नहीं कि बिना अभ्यास के कुछ होता है, नहीं, हम वहां जा करके, कई बार ये भी होता है कमेटियां जा करके सांसद क्या करते हैं, ऐसा नहीं है, कभी एक आध बार कुछ ऐसा होता होगा, मगर जाते हैं तो वहां इस प्रकार की जनता से चर्चा होती है, वहां के लोगों से चर्चा होती है, जो अपेक्षा की। और एक बात और भी बताऊं इसी प्रकार, मैं जब इसकी मैं अध्यक्ष थी, जब बिल आया था एक तुम्हारे लैंड एक्विजिशन का बिल अभी अभी आया था बीच में, तो लैंड एक्विजिशन की इसमें भी बाय चांस वो ग्रामीण मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की मैं ही अध्यक्ष थी उस समय। तो इसमें हमने इतने लोगों से चर्चा करी है, किसानों के प्रतिनिधि भी वहां आए हुए थे, मजदूरों के प्रतिनिधि, जो जो अलग अलग सभाएं थी या सोसाइटियां थी, कई सारे, यानी कई दिनों तक हम सबसे चर्चा करते रहे कि लैंड एक्विजिशन में क्या क्या होना चाहिए, क्या परिवर्तन है, क्या नहीं है। अरे ऐसा नहीं कि कुछ भी होता नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, लोगों को आजकल लगता है कि पहले बहुत अच्छा, हाँ पहले चर्चा करने वाले अभ्यास पूर्वक चर्चा बिलों पे होती थी। मैं भी जिस समय शुरू शुरू में मैं गई
तो पार्लियामेंट में जब चर्चा होती थी तो मैं सुनने के लिए बैठती थी, और उसमें जैसे अनेक ऐसे लोग थे जो मैं हमेशा उनके नाम लेती हूँ, हमारे अपने अटल जी वगैरह तो थे ही, जो बोलते ही थे ऐसे, मगर इंद्रजीत गुप्ता जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के होते हुए अत्यंत अभ्यास पूर्वक बात करते थे, बोलते थे। मधुलिमा जैसे को मैंने सुना हुआ, मधु दंडवती जी को मैंने सुना है, वो भी थे। तो कई ऐसे लोग थे, और वो जो बोलते थे बहुत, जिसको बोलते सारा गर्भित बोलते थे। अभ्यास सोमनाथ जी थे, एक हमारे वासुदेव आचार्य थे, उनका अभ्यास तो खूब था, और जब बताते थे एक एक चीज, मगर केवल बात इतनी थी कि उनका बोलना थोड़ा, जिसको हम बोलते ना, स्लो मोशन चलता था, तो कभी कभी लगता था बस भी करो, अब ये भी होता है, मगर उनका ज्ञान जरूर था। तो इनका था, हमारे अपने जो लीडर थे बहुत बारीकी से अभ्यास करते थे। तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में चर्चा होती नहीं है, उस समय भी होती थी, आज भी। जैसे उस समय के में हमारे लोगों के कई सारे नाम, अरुण जेटली जी जैसे तो अभी तक लोगों ने सुना है। अब नितिन गडकरी जी को आप सुनते हैं तो उनके तो मुंह पे आंकड़े रहते हैं जब वो कई बातों का जवाब देते हैं। तो ये साधक बाधक चर्चा पार्लियामेंट में होती है, ये भी मैं आपको कहना चाहूंगी। उसके पहले जैसे मैंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी में जनप्रतिनिधियों से, मतलब दूसरे जनप्रतिनिधि, जैसे मैंने अभी कहा किसान प्रतिनिधि हो, या उनको बुलाया जाता है, या कोई आना चाहता है तो दे कैन राइट टू पार्लियामेंट कि हम इसके सामने आना चाहते हैं, हम अब अपनी बात रखना चाहते हैं, या कई लोगों को हम कहते हैं आप भेज दो, तो स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी लोग आते हैं, चर्चा होती है, और फिर वो चर्चा होके, मैंने ऐसा नहीं, पूरी प्रोसीजर उसकी है। अभी जैसे मैंने कहा, ये प्रोसीजर के बाद जब पार्लियामेंट में, लोकसभा में कोई बिल पारित होता है तो वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में भी उस पर ऐसी ही चर्चा होती है, और राज्यसभा से पारित होने के बाद वो सूचित करते हैं कि हमारे यहाँ हो गया, तब वो माना जाता है कि यस इट हैज बिकम ए लॉ नाउ। तो ये एक प्रकार की, और फिर एक बात और बताऊं कि कई बार ये जरूर होती है गड़बड़ी की, एग्जीक्यूटिव पर ये आरोप आता है कि वो कहीं परिवर्तन करते, ऐसा भी होता है, रूल्स बनाना ये उनका काम है एग्जीक्यूटिव, कि कोई कानून के जो छोटे मोटे रूल्स बनते, मगर मैं आपको बताऊं उसको भी बाद में टेबल, जो पेपर लेइंग होता है, ये पेपर लेइंग, ये सभी चीजों का वो लेइंग है, और वो पेपर लेइंग का अर्थ ही है ये पार्लियामेंट के लिए हमने रख दिया, जो जो कोई इसको देखना चाहिए देखे, यानी मेंबर्स कैन गो थ्रू इट। और ऐसे भी मेंबर्स अभी हमारे इसमें भी पार्लियामेंट में कई सारे थे, वो छोटी छोटी बातें देखते भी थे। उड़ीसा के, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मगर बहुत बहुत ही व्यक्ति व्यवस्थित थे वो, आज भी है पार्लियामेंट में, ऐसे लोग भी थे कि वो देखते हैं। अब एक बात जरूर ऐसी आती है, कई बार ऐसे लगता है कि जिम्मेदारी सबकी है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि प्रियम्बल में मेरे लिए जो महत्वपूर्ण बात है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो जो भी हमारा संविधान बना है, संविधान में जो बातें कही गई है, अगर मुझे संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं तो संविधान ये भी बताता है कि तुम्हारी देश के प्रति ड्यूटी क्या है। संविधान ये भी बताता है कि गाइडलाइन देता है कि कैसे करोगे, सरकार किस तरीके से करेगी, आपको किस तरीके से बिहेव करना है, ये गाइडलाइन भी संविधान हमारा देता है, उसके भी कुछ एक बातें वो कहता है। तो ऐसा नहीं है, मगर हम क्या करते हैं, वो तो मनुष्य का स्वभाव है, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद रहते हैं, मगर मेरे कर्तव्य को कौन याद रखेगा। मैं इस पर इसलिए आ रही हूँ कि कोई भी ये लीगल प्रोसेस ये जब चलती रहती है, मगर इस प्रोसेस के साथ साथ वी द पीपल ऑफ इंडिया, उनकी भी क्या कोई ड्यूटी है। जो समझदार लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जिनका अगर ये होता है कि वो विषयों का अभ्यास, हम ये मानते हैं कि उनका विषयों का गाढ़ा अभ्यास रहता है, तो उनका भी तो कर्तव्य कुछ है कि नहीं है, कि वो देखेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग, इनका भी अपना है।
जो सामाजिक जो कहते हैं अपने आप को सोशल वर्कर कहो या जिनको सामाजिक जिम्मेदारी की थोड़ा भान है, ऐसे भी जो लोग हैं उनकी भी कोई ड्यूटी बनती है कि यस वी पीपल ऑफ इंडिया हमें देखना है कि ये जो बिल है ये कानून का रूप ले रहा है, इसमें क्या है क्या नहीं है, मैं सजेशन और दे आर ओपन, दे सकते हैं और देना ही चाहिए, ये मैं मानती हूँ। ये बात जरूर है, मगर ऐसा होता है क्या, माफ करना, मैं एक बात बताना चाहूंगी क्योंकि मेरे इतने चुनाव हुए उसका अनुभव है मेरे पास कि कई बार हम देखते हैं कि चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद उसके पहले जो प्रक्रिया है कि जो वोटर लिस्ट बनती है, मुझे आप ही बताओ, आप सब समझदार लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं खुद जाकर के देखते हैं मेरा नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमें काम देना पड़ता है कि अपने अपने क्षेत्र में जाओ, देखो, घूमो, किसी का नाम रह तो नहीं गया, हाउस टू हाउस जाओ, या सरकारी तंत्र के लोग भी जाने जाते हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है। मगर कभी हमने सोचा कितने परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो खुद होके वहां तक जाके देखते कि मेरा नाम है कि नहीं है तो होना चाहिए, क्या क्या चाहिए, मैं सब सबमिट, पढ़े लिखे भी, माफ करना, मेरे शुरू के मेरे 2-3 चुनाव का मुझे अनुभव है, बुरा मत मानना। फिर वोटिंग होता है और वोटिंग में हम देखते हैं कि कितना वोटिंग हुआ, 60% हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा क्या हुआ, 60% वोटिंग हुआ, मतलब 40% लोगों ने वोट नहीं दिया, ये घर से निकले ही नहीं है। कौन है? क्या सभी अनपढ़ लोग हैं क्या? उलट नहीं है, उनकी तो लाइन लगती है। समझदार लोग भी होते हैं उसमें, भले ही 10% हो, 20% हो, मगर जो समझदार है, मुझे क्या करना, ठीक है यार, चुनाव क्या, एक बात ऐसी बोल दी कि अरे सब ऐसे ही है, किसको अरे मगर कोई ना कोई तो उसी में से बनेगा ना जनप्रतिनिधि तुम्हारा, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि अरे क्या करना दे के कोई भी आ जाए, नहीं, प्रजातंत्र में आप ऐसा नहीं कह सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, देना ही पड़ेगा आपको जाके वोट, कंपलसरी, कई बार हम कहते कंपलसरी होना चाहिए। हमारे यहाँ धीरे धीरे ये जागृति आ गई, मैं आपको बताऊं, नहीं तो पहले ये होता था कि बाकी तो लोग निकल पड़े फटाफट, दोपहर को 2 बजे बाद काम हुए तो लाइन लगी उनकी, मगर बड़ी बड़ी मल्टी के लोगों को एक एक घर जाके लाना, और तब हमने उसके बाद एक बात बताती हूँ, शुरुआत करी थी, ये छोटी मल्टी की मीटिंग लेना चुनाव के पहले, ये हमने शुरू किया था, मल्टी की मीटिंग, और ये छोटी छोटी मीटिंग लेके उनको समझाइश देना, उनसे चर्चा करना, ये काम हमने शुरू किया, एक जागृति लाए और फिर वोटिंग अच्छा होना शुरू हो गया, नहीं ऐसा नहीं। मगर यहाँ जो बात आती है कि एक वोटिंग में हमारी जिम्मेदारी हम कितनी समझे। एक दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि हम कहते हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, कितने लोग भाग लेते हैं, इनको तो हम उसके लिए पूछते हैं ना लोकसभा में या विधानसभा में कि कानून बनाने वाले लोग हैं, कितने जानते हैं, कितने बोलते हैं, मगर कहाँ बोलेंगे। 540 लोगों को अगर 3 घंटे कोई बिल का समय है तो 3 घंटे में 540 लोग तो नहीं बोल सकते, कुछ ही बोलेंगे, मगर समझते सब लोग हैं। जो अभी मैंने कहा वो जो प्रोसीजर है, चाहे स्टैंडिंग कमेटी के हो कोई, मगर मैं उसके भी आगे जाके बोलूंगी कि हम जनप्रतिनिधि को समझने का समय भी कितना देते हैं, जनप्रतिनिधि से हमारी क्या क्या अपेक्षा रहती है। आप अपने मन में ही सोचो हम क्या क्या अपेक्षा करते हैं, क्योंकि मैं कह सकती हूँ शुरू में तो मेरे लिए हुआ, जब मैं पार्लियामेंट चुन करके गई तो लोग पहले तो मुझे बोलते थे, मैं ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट में रहने का प्रयास करती थी उपस्थित, तो बोले अरे कितने दिनों में आप ताई दिखी ही नहीं, कहाँ थी आप? अरे बाबा दिल्ली में क्यों जाती हो, हमारी तो कई सारी समस्या। अरे बाबा आपने मुझे चुनाव दिल्ली के लिए चुनाव कर दिया ना, तो जाना पड़ता है, ये मुझे समझाना पड़ता था भले भले लोगों को, ऐसा मत सोचो कि सब कोई नासमझ लोग थे, नहीं, भले भले, क्यों? क्योंकि उनके अपने काम होते थे, नगर निगम का भी काम बताना है सांसद को, ये भी ठीक है, व्यक्तिगत काम भी अब वही करे, ये भी हमारी अपेक्षा रहती है सांसद से। या ये तो अगर मैं लिस्ट कहूँ तो इतनी लंबी जाएगी कि ट्रांसफर पोस्टिंग भी हम जनप्रतिनिधि से चाहते थे,
या फिर अब मेरा रिटायर, माफ करना, जो सरकारी भी कर्मचारी होते हैं अच्छे भले पोस्ट के, वो ज्यादा प्रयास करते कि अब मेरा रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ ना कुछ मिले, कोई कमिटी, कोई पोजीशन, क्या करूं मैं घर बैठ के, मिलना चाहिए। फिर इसके लिए प्रयास, फिर जनप्रतिनिधि को कहेंगे मेरा थोड़ा सा कुछ, इनकी भी अपेक्षा ऐसी रहती, यानी हर एक की ऐसी अपेक्षा जन, इसलिए जनप्रतिनिधि मुझे मिले, मेरे लिए पत्र लिखे, मेरे लिए फोन करे, ये वो सब ऐसे ऐसे कई सारे होते। दूसरी एक बात जो जनप्रतिनिधि के लिए भी होती है, वो एक बात ये होती है कि वहां जब वो पहुंचते हैं, वो पहुंचने के बाद उनको ये भी देखना है कि एग्जीक्यूटिव ठीक काम कर रही है कि नहीं, ये देखना होता है। जागरूक जनप्रतिनिधि देखते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूंसी पे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के काम होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के काम अगर जनप्रतिनिधि नहीं देखे, कई बार ये टीका टिप्पणी होती है, अरे सदस्य पार्लियामेंट में बैठते नहीं, सदन खाली दिखता है। खाली दिखता है इसका मतलब वो सदस्य, मैं हमेशा कहती हूँ, वो सदस्य घर जाके सोया नहीं है, वो कहीं मिनिस्टर को मिलने जाता है, वो कहीं किसी अधिकारी को मिलने, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम, जैसे मैंने अपने क्षेत्र में केंद्रीय सड़क निधि से इतनी सड़कें बनाई कि आज भी लोग आश्चर्य वास्तव में करते हैं, गांव गांव में बनाई। मगर कैसे बनाई, ये मेहनत करना पड़ी, एक बार दो बार हुआ कि नहीं, एंट्री हुई कि नहीं, भोपाल से प्रस्ताव आए कि नहीं आए तो मैं भोपाल बात करूं, कई कई सारे जब पीछे लगते हैं। ट्रेनें चलाना हो तो ट्रेन भी चलाना हो तो मेहनत तो करना पड़ेगी। ये मेहनत वो जनप्रतिनिधि को करना है, क्योंकि उसको चुनाव जब आएगा, दूसरा चुनाव, तो दिखाना तो पड़ेगा। केवल मैंने पार्लियामेंट पे बिल पे क्या बोला उस पे नहीं बात जाती, बात इस पे भी जाती है कि तुमने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट के काम कितने किए, आप लोगों से कितने मिले जनप्रतिनिधि के नाते, आपका संपर्क कैसे, ये कई सारी बातें एक उस जनप्रतिनिधि पे रहती। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपने काम पे बिल, ये जो कानून बनाने का मूल काम है, इस पर वो ध्यान नहीं देते, ऐसा नहीं। उसमें मैं एक बात और कहना, थोड़ा लंबा, मुझे मालूम नहीं मेरा समय अभी है कि नहीं, एक बात और भी है, हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम है, हम सब जानते हैं पार्टी सिस्टम है, तो टिकट भी जो मिलता है वो पार्टी से मिलता है। और ये पार्टी सिस्टम में यू हैव टू फॉलो पार्टी सिस्टम। पार्टी के, अब पार्टी के अंतरंग बैठकें में कितनी चर्चा सामूहिक होती है ये हर पार्टी जाने, हमारी तो हर मंगलवार को बीजेपी की मीटिंग होती थी, मैंने देखा है हर मंगलवार को पार्लियामेंट जब चलता है तो सभी पार्लियामेंट मेंबर की मीटिंग होती थी, उसमें आने वाले सप्ताह में क्या क्या करना, कई सारी बातों पर चर्चा भी होती थी। लेकिन ये बात भी है कि आखिर में जो भी निर्णय होता था वो सबको फॉलो करना होता है। मेरी व्यक्तिगत राय कुछ अलग हो भी सकती है, मगर पार्टी का निर्णय सर्वोपरि, यू हैव टू। और ये है, अब कई पार्टियां व्यक्तिगत आधार पे है, व्यक्ति की पार्टी, ये तो मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप भी जानते हो कि कोई व्यक्ति की ही पार्टी बन गई, फिर वो कहे वैसे, मगर ये हुआ है। दूसरी बात यह है कि अगर डिसीजन हुआ कि इस प्रकार से वोटिंग करना है, तो पार्टी के आधार पे मुझे वो वोटिंग करना ही है, नहीं तो आपने भी वो 10th शेड्यूल में दल बदल कानून तो बना के ही रखा है। तो कई सारी मर्यादा का पालन जनप्रतिनिधि को करना भी पड़ता है। और इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों का अभ्यास है कि नहीं, वो कितना हिस्सा लेते हैं, वो बिल पे कितना बोलते हैं, कानून बनाने में कितना समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि उनको बाद में जाके अगर वहां नहीं भी बोले पार्लियामेंट में, तो बाद में जाके दे हैव टू आंसर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को, उनको आंसर पूछते हैं, प्रश्न जरा से भी समझदार लोग आपको बुलाते हैं कि ये कानून बना, हमें समझाओ क्या होगा इससे। अभी जो नागरिकता संशोधन बना तो समझाना पड़ा हमें कि क्या होना, किसी को हानि नहीं होना, कैसे नहीं होना, क्या होना, यू हैव टू। तो वहां आपको समझाना पड़ता है। जो जागरूक अगर जनप्रतिनिधि और जागरूक जो जनता है वो प्रश्न पूछती है आपको, इसलिए मालूम तो सब करना पड़ता है, बोलने का मौका सबको नहीं मिलता। और इसलिए मैंने जैसे कहा, अभी ये जो पार्टी सिस्टम है, कौन करेगा इसको, हम भी बहुत जानते हैं, सबको मालूम है कि नहीं, दल बदल पे तो हम कुछ लगाना पड़ेगा, ये भी बोलोगे तो फिर
जहां सुप्रीम कोर्ट का सवाल गया था। अगर ऐसा कुछ हुआ कि जो हमारे संविधान ने मूलभूत वैल्यूज जो बताई है उस पर आघात करने वाली कोई बात अगर आती है तो कहीं ना कहीं, मगर उसमें भी हमने देखा लगाना हो तो इमरजेंसी तो लगी गई, हालांकि ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। और फिर जनता ने भी समझा दिया कि यस वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें मालूम है जो गलत है तो उसको गलत बोलने का तरीका हम जानते हैं, हमारे एक वोट की कीमत हम जानते हैं। मेरा तो कम से कम इस पर विश्वास है। और इसलिए संविधान हमारा जो बना है, संविधान की रक्षा एक बार जरूर हुआ। और वास्तव में उस दिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मेरे ही अध्यक्षता में ऐसा एक मौका आया जब आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नोटबंदी लगाई थी, हालांकि उसमें जो भी हुआ मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगी, उनके पीछे इरादा बहुत स्वच्छ और साफ था। मगर कितना हल्ला किया, कितनी मुश्किल खड़ी कर दी। और वो जो टैक्सेशन बिल था, चर्चा ही नहीं होने दी, उसको बिना चर्चा के हमें पास करना पड़ा। प्रयास किए सब प्रकार से। अब ठीक है, उसके पीछे जो भी राजनीति हो, मगर एक ही बार मेरे 5 साल के कार्यकाल में एक ही बार जरूर ऐसा हुआ और मुझे वास्तव में बहुत पीड़ा हुई कि अरे आप अपनी बात तो कहो, कुछ चर्चा तो करो, कितना हल्ला, केवल हल्ले हल्ले में इतना महत्वपूर्ण बात जो है वो बिल पास करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ लगता है काला धन बाहर निकालना है, ये तो सबकी इच्छा थी। पंडित नेहरू ने कहा था उस समय, मैं काला बाजार करने वाले को चौक में फांसी देना चाहता हूँ, ये उनके स्टेटमेंट हुआ करते थे। तो काले धन के विरोध में सभी है, आप भी हो, हम भी है। अब एक ने कुछ कर दिया नियम, कुछ हुआ, उसमें कुछ हो गया होगा, छोटी मोटी गलती, हमें ये नहीं कहते, मगर चर्चा करो, पार्लियामेंट इज फॉर डिस्कशन। मगर ये एक ही बार हुआ, लेकिन हमने हमेशा पार्लियामेंट में होता है कि बिना डिस्कशन के कोई भी बिल पास नहीं हो, ये देखा जाता है। अब केवल हमें ये देखना है कि हमारा संविधान के रक्षक केवल जनप्रतिनिधि नहीं है, संविधान के रक्षक हम सभी हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और उसमें राइट्स के साथ साथ कहीं ना कहीं ड्यूटीज भी आती है। तो हमारे, और ये तो मैं कहूँ जैसे मैंने कहा, हमारे धर्मशास्त्र ने भी ये सिखाया, प्रत्येक मनुष्य के अपने कर्तव्य है। जीवन में कर्तव्य का हमारे यहाँ महत्व ज्यादा है। अधिकार तो मिलेंगे, तुम्हें मिलना है तो मिलते जाएंगे, मगर तुम्हारा एक इंसान के नाते कर्तव्य क्या है, एक समाज में रहते हुए समाज के प्रति तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इसको हमने सतत महत्व दिया है। और इसलिए जब हम पार्लियामेंट की, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हमारे संविधान की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इन बातों को हमें सोचना पड़ेगा कि इस पर हम कैसे ध्यान दें। क्योंकि ये जो बना है संविधान और उसमें जो बातें कही गई, ये कभी ऐसा नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ऐसा कहीं नहीं है। ये महत्व की बात है कि उसका जो प्रियम्बल है ये नहीं कहता कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये तय किया है कि आगे भारत इस तरीके से चलेगा, नहीं है, कहीं भी है नहीं है उसमें। और इसलिए वो समझदार लोग थे, सभी प्रकार के थे, बहुत सोच के ये बनाया गया है। और इसलिए उसमें ये शुरुआत ही वहां से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम तय कर रहे हैं सब मिल करके, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार मैं माफ करना पूछना चाहूंगी, हमारे विधि मंच है, हर जगह विधि मंच होंगे, जब पार्लियामेंट में कोई बिल आता है या हम चाहते हैं इस प्रकार का कानून ऐसा हो, हम कितनी चर्चा करते हैं। कई अगर थोड़ी गलती भी होती है, कई बार मैं तो माफ करना थोड़ा अलग ये बोलती हूँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने भी स्पीकर बनी ना, तो मुझे कई मौके ऐसे मिले मन की बात बोलने के। तो एक बार मैं गई थी, पालकी वाला जी पे लेक्चर था या कहीं तो था कार्यक्रम, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस भी आए हुए थे, रिटायर्ड भी थे, बैठे हुए भी थे। तो उनके सामने भी मैंने कहा कि आप सब बैठे हो, न्याय में देर होती है, किसकी गलती, सोचना पड़ेगा। न्याय पर से विश्वास, जैसे हम जनप्रतिनिधि है तो हम आसान टारगेट है, सब पत्थर हमको मारते हैं, हम खाते भी हैं।
मगर कहीं आप पर ये नहीं आ जाए, बारी आपकी नहीं आ जाए हमारी बात में, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों होता है? और मैंने उदाहरण के तौर पे कहा भी था, मैंने कहा कोई भी पीआई लगाई जाती है या कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में एडमिट होना, ये एक समय में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। बहुत तर्क वितर्क उसके लिए करना। मैंने अपने क्षेत्र के एक उदाहरण देके उनको बताया, एक दो दे दी। मैंने कहा अब तो ऐसा हो गया, कोई भी तुम एडमिट हो जाती और फिर काम का बोझा बढ़ा। तो थोड़े मेरे पास देखने लगे मेरे सामने। मैंने कहा हाँ, मेरे इंदौर का एक किस्सा है। हमारे हाईकोर्ट ने एक निर्णय, हमारे यहाँ की एक सड़क चौड़ी करनी थी, उसकी चौड़ाई कितनी होना, उसका मध्य कहाँ से जाएगा, इसका विवाद था क्योंकि दोनों तरफ मकान थे, दोनों मकान वाले बड़े लोग थे, उनका थोड़ा थोड़ा टूटता हिस्सा, तो क्या करना, तो कोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया, कितना होना क्या होना, मध्य भाग कहाँ से हो गया। अब उस पर अपील सुप्रीम कोर्ट में, व्हाई टू एडमिट। क्या सुप्रीम कोर्ट मेरे इंदौर में देखने आया गया कि वास्तविक सड़क की क्या स्थिति है? माफ करना, मैंने तो बोला था, मगर मैंने कहा मैं बोलती नहीं, मगर छोटी छोटी कई बातें होती है। हर एक ने अपना काम जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। अगर जनप्रतिनिधि ने तो करना ही है, तो उन्होंने भी, ये सभी स्तंभ है एग्जीक्यूटिव ने, उन्होंने भी अपनी, एक बार ये भी बताती हूँ, जो आपने कहा ना कई बार एग्जीक्यूटिव गड़बड़, तो प्रतिनिधि को वो देखना होता है। एक ऐसा ही ये बिल पास हो गया था, ये रोड्स के मामले में, बहुत पहले हुआ था, वो हमारी सरकार में नहीं हुआ था, उसके पहले हुआ था। और उसमें ऐसा हुआ था कि टोल टैक्स लिया जाता है। वो टोल टैक्स बंद करने की भी बात थी, बाद में आई। मगर पहले टोल टैक्स लिया जाता था, मगर टोल टैक्स का अर्थ ये होता था आप रोड बनाओ फिर टोल टैक्स शुरू होता था। अब हुआ क्या उसमें, जो बाद में मैंने कहा ना रूल्स बनते हैं ले होते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि बनते रोड में भी टोल लिया जा सकता है। और एकदम बात ऐसी आई कि मेरे ही इंदौर में हमारा जो बाईपास था, उसका 6 लेन का काम शुरू हो गया। 4 लेन तो हमने बनाई थी, 6 लेन का काम शुरू हो गया और टैक्स लेना शुरू। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, अभी तो काम शुरू किया टैक्स के। तो मुझे नियम दिखाए गए, मैं जाके मंत्री तक मैंने झगड़ा भी किया, पार्लियामेंट में भी बात उठाई, ये सब किया, और उसको मैंने निकालवा दिया कि ये नहीं कर सकते तुम, अधिकारियों को बोलते हो ऐसे कैसे करोगे गड़बड़ी। तो ये होता है, तो एक जागरूक को सांसद को ये भी देखना होता है, और सांसद देखता भी है। तो ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट में नहीं बोले तो कुछ देखते नहीं, उनको ये भी चीजें बारीकी से देखना होती है कि अपनी इसमें क्या समस्या आ रही है, या फिर नियमों में कुछ हेरफेर हो रहे हैं, तो वो जाके जागरूकता से देखना, बताना, ये भी तो जनप्रतिनिधि का काम है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। आजकल ऐसा होता है, फिर हमें बहुत आसानी से लगता है कि डिबेट अच्छा नहीं होता। किसने कहा थी? आज सुषमा जी के कई भाषण देखो, हम भी अच्छे से सुनते हैं उसको, नहीं ऐसा नहीं है। अब हमारी निर्मला सीतारमण बोलती है, ताकत से कुछ बात करती है। कई आज भी मिलेंगे ऐसे, नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं। तो डिबेट आज भी होता है। हाँ, कभी कभी थोड़ी गड़बड़ होती है कि डिबेट करने ही नहीं दिया। एक बीच में ये पद्धति चल पड़ी कि अपनी बात कहो, सरकार को कोसो, और अगर मंत्री उत्तर देने खड़ा होता था तो या तो चिल्लाओ और चिल्ला के बाहर निकल जाओ। मैंने उस पर भी कई बार ये बोला था कि ये गलत बात है, मगर ये गलत को गलत हिंदुस्तान में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने बोलना चाहिए हमेशा, अपने अपने वोट के द्वारा बता भी दिया कि ये गलत हो रहा है। तो मेरा इतना ही कहना है कि भूमिका सबकी है, जनप्रतिनिधि की भी भूमिका है कि जो हमारा संविधान है उस संविधान की रक्षा करना, संविधान में जो जो बातें हमें कही गई है, वैल्यूज है, वो हमारे जीवन के वैल्यूज है। तो भारतीयों के जीवन की पद्धति है वो एक प्रकार से, क्योंकि हमने कहा ही है कि सर्व पंथ समभाव, ये सिखाने की हमें जरूरत है नहीं। जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, करा है हमने। हमने पारसियों को इतना अपना माना, इतना अपना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दूध में शक्कर जैसे हम रहेंगे, तो हमने उसको अपना माना। और आज हम कई ऐसे उद्योगपति देखते कि मालूम ही नहीं पड़ता इतना जीवन उन्होंने हिंदुस्तान के तरीके के लिए दिया। तो ये है हमारी अदर संस्कृति ही हमारी है, सर्वपंथ समभाव की संस्कृति हमारी है। स्वातंत्र्य हरेक का है, मगर वो स्वातंत्र्य का अर्थ स्वैराचार नहीं है, ये भी हम मानते। ऐसी कई सारी बातें। तो मेरा इतना ही कहना है कि ये केवल
जनप्रतिनिधि या पार्लियामेंट मेंबर या मिनिस्टर या अधिकारी, इन सबकी जिम्मेदारी तो है, मगर साथ ही साथ बाकी जितनी भी ऐसी कड़ियां जुड़ी हुई है जिनको ये वॉच करना है कि हिंदुस्तान में गड़बड़ नहीं हो। ऐसे कई सामाजिक संस्थान हैं जिनका भी ये दायित्व बनता है कि मैं जागरूकता से देखूं कोई गड़बड़ नहीं हो। ये सबके साथ साथ कहीं ना कहीं जो अपने आप को ठीक नागरिक मानता है, वही द पीपल ऑफ इंडिया, इनको भी एक जागृति तो लाना पड़ेगी। और जब बोलने का समय हो, बोलने का ऐसा है कि हिंदुस्तान के नागरिकों को बोलने का समय वैसा नहीं होता, मगर अपने एक वोट से वो बहुत कुछ बोल देता है। ये बोलने की जागरूकता कहीं ना कहीं, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर whosoever janapratinidhi we give our votes and he goes there, and whether he works or not, whether he speaks or not, whatever he does, next time we the people of India can correct ourselves all these things. ये बात है, और इसलिए मेरा पूरा विश्वास है जब तक हमारा ये अधिकार कायम है, ये स्वतंत्रता हमारे मन में कायम है, तब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के जो है वो कभी आज आ नहीं सकती है, क्योंकि आई तो हम जो है वो हम कहीं ना कहीं हमारा जो अंदर का हम जागरूक हो जाएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी विल लिक्विडेट, वी विल मेक इट करेक्ट, सो वी आर देयर, हम रक्षक है उसके, ये भाव हमें जागरूक करते हैं। धन्यवाद। Thank you, Sumitra Taiji. Being a forum of debate, Vidhimanch generally presents a response, and on behalf of the Manch, I seek your leave to state few things. Before I also state couple of things which you very rightly pointed out about how Vidhimanch has been for 33 years. Have we ever shown that responsibility? I'll just give couple of examples for that. But let me first make a mention, Madam, your exposition and elucidation of a very vast subject which has not been much spoken and deliberated was illuminative and informative. Madam, the theory of due process is at the foundation of the concept of rule of law. And rule of law is nothing but the constitutionalism of a nation. यहां मैं कुछ रुकता हूं और मैं आपकी कही बात पर कुछ थोड़ा सा एक अपना विचार रखता हूं जो विधिमंच का विचार है। मैं इसलिए ये विधिमंच का विचार कह रहा हूं क्योंकि विधिमंच 33 साल में उन्होंने जिन जिन लोगों को बुलाया, जिनके भाषण करवाए, जिनसे डिबेट हुई, उसमें एक व्यक्ति था टीएन शेषन। एंड टीएन शेषन उस वक्त पूरी उरूज पे थे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और वो सिर्फ एक सिटी में एक ही दिन भाषण करते थे, सारे हिंदुस्तान घूमते थे। और उन्होंने शायद जो जनजागरण किया था चुनाव और मतदान की प्रक्रिया के बारे में, मतदान के महत्व के बारे में, वो अपने आप में एक मिसाल थी। और वो हमारा सौभाग्य था कि विधिमंच, हमको 6 महीने उनके पीछे पड़ना पड़ा उनके अपॉइंटमेंट के लिए, और हैदराबाद का सबसे बड़ा करीब 3,500 लोगों के अटेंडेंस में उनका भाषण हुआ था। और उस वक्त हमने एक ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स नाम का एक लीफलेट बनाया था। हमने कहा कि आपको वोट क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, और उसको हमने रिलीज किया था उनके हाथों से। ये तो बहुत पहले वाली बात हो गई, अभी तो यानी करीब करीब 20 साल 25 साल पहले की बात हो गई। उसके पश्चात हमने कम से कम 5 या 6 बड़े बिल्स जो आए थे पार्लियामेंट में, जिसमें एक हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर का एक बिल था और 2-3 ऐसे बिल थे। हम हर वक्त एक अपना इरादा रखते हैं, और जैसे कोई बिल आता है थोड़ा सा जहां कंट्रोवर्शियल होता है, हम उसको डिबेट करते हैं, उस पर एक हम मसौदा बनाते हैं, हमारे कमेंट्स बनाते हैं और हम भेज देते हैं।
यहाँ तक के लोकल लॉज में भी अगर होता है तो भी करते हैं, सेंट्रल लॉज में होता है तब भी करते हैं, और ये जानते हुए करते हैं कि शायद ये कहीं काम भी ना आए, लेकिन हमारी जो ड्यूटी है हमको करनी है और हम ये कर देते हैं। अभी हम आने वाले दिनों में फार्मर्स का जो बिल आया है उसको हम लेने वाले हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है। पहली मर्तबे फार्मर्स पर कोई लेजिस्लेशन बन रहा है, क्योंकि ये बिखर बिखर के बहुत से लेजिस्लेशंस थे, ये एक मुश्त एक जगह बन रहा है। तो हम ये करते जरूर हैं। और आपने जो कहा, मैं समझता हूं कि जैसे हमने उस दिन बात की थी मैडम, और उसमें ये कहा गया था कि इस विषय पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस पे कहीं भी कोई चर्चा नहीं होती है, क्योंकि हर एक का आपने जैसे कहा ये मानना है ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मैं इस पे क्यों बात करूं, ये लेजिस्लेटर्स का सब्जेक्ट है। नहीं, ये हम सबका सब्जेक्ट है। और मैंने उस दिन आपको कहा था कि ये पहली बार होगा कि आप जब बोलेंगी तो ये फाउंडेशन बनेगा और इस पर काफी चर्चाएं होंगी। और आपके इस भाषण के बाद मैं समझता हूं इसके कम से कम 5-6 अलग अलग पहलू आए हैं जिन पर अलग अलग विचार होने चाहिए। और कई जो आज पहली बार विधि मंच के इस मंच पर से पहली मर्तबे जो बहुत सी चीजें हो रही हैं, उसमें से एक बहुत ही बढ़िया चीज ये है जिसका मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन है कि ये सारा भाषण हिंदी में रहा। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हिंदी में सुनने की आदत भूल गए हम लोग। हम संविधान नहीं कह सक रहे हैं, बहुत बहुत बड़े कठिनाइयां हैं। उन सारी कठिनाइयों को पार करके कॉन्स्टिट्यूशन समझना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब भी पार्लियामेंट के सेशन सुने जाते हैं, एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि लोगों को हिंदी में अपनी बात रखने का कितना प्रयास करना पड़ता है। यहां तक कि मैं देखता हूं साउथ से आए हुए लोग भी मजबूर हो जाते हैं और हिंदी में बोलना पड़ता है उनको, और वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उनको जैसे आपने कहा दिल्ली में किसी भी जगह जाना है तो उनको हिंदी बोलना ही है, तो वो समझते हैं। उनको झगड़ा भी करना है, किसी पे चिल्ला पुकारी भी करनी है तो भी वो हिंदी में ही करनी पड़ती है, और ये सबसे अच्छी बात। तो ये बहुत बढ़िया रहा आज का कि आपने हिंदी में इसका उद्घोष किया, और हिंदी में इसको, क्योंकि इसकी अचानक से परिधि बढ़ जाती है, लोगों ज्यादा लोग समझने लगते हैं, और इस वजह से मैंने कहा कि बहुत सा इल्यूमिनेटिव और इंफॉर्मेटिव ये टॉक रहा। So now I'll just shift back to my text and I'll just say, ma'am, the present society that we live in is more educated. I think आपने जो बातें कही हैं ये बहुत पहले मैंने लिखा था, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपने जो आज बात रखी उसका एक कहीं ना कहीं सार इसमें आपको दिखेगा। The present society that we live in is more educated and aware of their rights. They are analytical and can form their own opinions uninfluenced by anyone. In fact, there is a decline in idealism as we have failed in creating ideas. There is an upheaval in the cultural stability of this nation. We are probably in a period of transit when the values and notions of culture are changing drastically. The worldwide concern, therefore, is about sustainability, be it about the climate, the natural resources, the human resource, or the political and economic facets of the civil society. The question is, how can we sustain the equilibrium when the forces of repulsion are acting very strong? These challenges for a state as custodian of a civil society are not only new, but very difficult of being resolved. मुझे लगता है कि आज हम 1947-48 वाली जो पार्टीशन के बाद की स्थिति थी, तुरंत स्थिति जो पैदा हुई थी, कहीं कहीं हम 70-80% उस स्थिति में हैं। लेकिन ये एक नया प्रॉब्लम है, यानी वो प्रॉब्लम हमारे हाथ के बाहर का था। अशिक्षित लोगों का प्रॉब्लम कहा जाता था, आज शिक्षित लोगों का प्रॉब्लम है और समझदार लोगों का प्रॉब्लम है, इसलिए ये ज्यादा कठिन प्रॉब्लम है। In such times, it is only the Constitution, which is the most solemn document of state governance and people's protection, which alone will be the force of sustainability for a multifaceted nation like Bharat. Constitution Day, in our opinion, ought to be a national day of celebration. It is not a day only to greet each other. It is a day to implore
our minds and actions as a nation. Here is what you said, ma'am, we the people. We have to think not as myself, but as a nation. We therefore in Vidhi Manch have been celebrating this day with an exchange of thought. Madam, I must take this opportunity to mention that in this pandemic situation, when we have learned new norms like washing hands instead of shaking hands, socially distancing instead of social networking, masking the mouth instead of masking the face, we have seen that new norms of existence are set by the nature and the fear of survival. The good thing is people have learned to eat at home and live without medication. The strange thing, as we lawyers have experienced, was there are no disputes, no fights, no crimes, and therefore no courts also. Madam, I must mention that on this juncture, when the event of a very academic character does not these days attract sizable audience, and in spite of that, getting an erudite personality to address has its own challenges. But today, due to this virtual concept, it has become easy to come together, maybe with merely a screen presence of us all, but to exchange thoughts. It has proved that we do not need lecture halls. This suddenness of the world shrinking down has caught us unaware, but for us, it has provided an opportunity to bring an erudite personality who is deeply rooted in the thoughts and actions of public service and who rose to the heights of manning a house of people, a true housekeeper of this vast nation. We have seen you, ma'am, and your skills in managing many a difficult situation with ease and smile on your face. In fact, it is strange. This I always felt, ma'am. It is strange that a speaker of Lok Sabha is typically expected to speak less. But when he or she speaks, no one else speaks. That's the rule. And mostly our MPs do follow it. If they don't want to follow it, they walk out. And that doesn't matter. But when the speaker speaks, no one speaks. Madam, I must mention that in 33 years of journey of Vidhi Manch, it is the first occasion. There are a number of firsts today. It's the first occasion. As I said, we had an entire oration in Hindi. And it is the first occasion when we are going beyond the boundaries not only of Hyderabad, but even of India. Madam, similarly, it is first time we are in such a virtual mode that conducting our event of such large proportion. And most importantly, it is also the first time in 33 years that we have a woman addressing the Vidhi Manch. I don't know if it is really, it's not a compliment at all. But let me tell you, ma'am, we had number of judges in our high courts because we had to limit people from high courts mostly. But let me confess, not a one we found worth who could speak 15 minutes. So in order to get a woman of this stature, it's not an easy job for an organizer. And this is also the first time. And this is therefore a new beginning for us in every way. And we need your blessings. I must mention that the organizing associate with Vidhi Manch, that is Efficacy Law Hub, which is a new venture because of whose educative initiative and platform we could reach you all. ELH is a legal secretarial service being offered online as well as offline. This service is unique in its concept and conduct. It is both for attorneys and the clients. It facilitates and serves both the important elements of dispute resolution process. ELH has its own educational platform in the fields of law, legislation, and secretarial services. It has been conducting talks and counseling. It has held debates and open forums on issues of gender justice, urban planning, equal opportunity to professionals. It plans to expand. I request you do visit the website and make your recommendation for improving the service.